Carboxylic acid, very very important topic of the chapter aldehyde ketones and carboxylic acid. So in this particular video I'm going to talk about all the methods of preparation of carboxylic acid. Now guys, I just want to tell you that if you have a basic idea of the acid derivatives, that is the amide, esters, anhydride and acid halides, you can easily prepare acid from any of these derivatives. There are a few more methods which we'll be doing. So for a detailed explanation, let us quickly jump on to methods of preparation of acid. Over to the screen. As you all know, carboxylic acids are of two types: aliphatic, aromatic. Aliphatic acids वो होते हैं where carboxylic group is directly attached to the alkyl carbon, whereas aromatic acids are those where acid group is attached to a benzene ring. एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे तीन बड़े इजी मेथड्स हैं. फर्स्ट, टू प्रिपेयर देम फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और विद ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस. ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ HOH होता है, यानी कि वाटर को ऐड करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास चार तरीके के एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं. एसिड डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो हम विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एसिड. तो इंसिडेंटली जब हमारे को वो डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं, हम वापस उनसे एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं जिस एसिड से वो हमें मिले हैं. राइट. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे एक एस्टर है. मैंने एक सिंपल सा एस्टर लिखा. राइट. हर बच्चे को पता है ये एक एस्टर है, इथाइल एसीटेट. ये एस्टर मुझे कहाँ से मिला है? ये एस्टर मुझे मिला है विद रिएक्शन फ्रॉम एसिड, एथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल. Now guys, if I do hydrolysis, अब मैं इस एस्टर में अगर पानी डाल दूंगी, मुझे वापस ये एसिड और ये अल्कोहल मिल जाएगा. सो गाइस, जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं, एस्टर, हैलाइड, एसिड अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड, ये चारों के चारों हमें वापस एसिड देंगे वाया वेरी सिंपल वेज ऑफ हाइड्रोलिसिस. फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव एस्टर, very simple. As I said, the ester which we get from acid and alcohol, when we add water to the same ester, we get the same acid and the alcohol back. So one of the very easy way to prepare is the hydrolysis of ester. Second, hydrolysis of amide. This is amide. This we obtain from acid and ammonia. When we add water to it, we again get acid and ammonia back. Acid halide, that is acid which we obtain by adding halogen acid, that is HX2N organic acid. And when we take the same acid derivative, add it to water, we get the acid back along with the inorganic acid. Last derivative, acid anhydride. Acid anhydride is obtained from 2-carboxylic acid by removing water. So if we take anhydride and if we add water to it, again we will get both the acids. Either you can break from here or you break from here, and you will get the original acids back. So बहुत easy तरीका है to prepare all the acids from the acid derivative. Let's move on to the next method. Guys, before we start doing the actual preparation, let me tell you a very interesting thing about Grignard. We have this as Grignard reagent, that is alkyl magnesium halide. We can have Grignard as AR also. We can have this as phenyl also. Now the best part is that in this R gets a negative charge and Mg has a partial positive charge. So whenever we reacted with anything having a multiple bond attached to a electronegative, like carbonyl, like nitrile, always what will happen, this R will get attached to this C. Right. So making use of this very simple concept, we will prepare acid. बहुत ही simple तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का C डबल बॉन्ड O पे ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा और हम एसिड ऑब्टेन करेंगे. चलिए रिएक्शन की तरफ चलते हैं. लुक एट दिस रिएक्शन. यहाँ पर आपने ग्रिग्नार्ड लिया और यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिया. कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपने देखा C डबल बॉन्ड O है. इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर ग्रिग्नार्ड ने अटैक किया. C के ऊपर R लगा, राइट, एंड O के साथ MgX लगा, बिकॉज O नेगेटिव था तो Mg पॉजिटिव उसके साथ लगा. इसके बाद जब आपने हाइड्रोलिसिस किया, यहाँ पर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो OMgX OH में बदल गया, प्लस आपको ये कॉमन बाई प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड मिला.
सो बेसिकली हो क्या रहा है बच्चे, इस कार्बन डबल बॉन्ड O के पास एक कार्बन डबल बॉन्ड O एज सच रह रहा है, दूसरे में OH बन जा रहा है और R लग जा रहा है। सो आपको एक एसिड मिल जा रहा है। आपने R की जगह C2H5 लिखा है, सेम रिएक्शन को मैंने आपको करके दिखाया CO2, और यहाँ CO2 के एक C डबल बॉन्ड O की जगह COMgX दैट इज ग्रिग्नार्ड का पॉजिटिव पार्ट पड़ गया, और एल्किल पार्ट दैट इज द C2H5 दैट इज द नेगेटिव पार्ट गेट्स अटैच्ड टू द positive carbon. ठीक है, and what we get is atoic acid. So in carbon dioxide I have only one carbon, in Grignard I have got two carbons, so the acid will be of 3 carbons, right? The last example I have taken, instead of an aliphatic chain I have taken an aromatic Grignard, that is phenyl magnesium bromide. I add carbon dioxide to it, and similarly what I will get benzoic acid. So a beautiful way to prepare acid with the help of Grignard by acting on carbon dioxide. So guys, whichever acid you want, you can prepare just by choosing right Grignard and carbon dioxide. So now we will prepare aliphatic and aromatic acids with the help of oxidation. You know that acids are maximum oxidized. So आप guys, either you take alcohol or you take aldehyde or you take ketone. आपको तीनों के ये सभी के सभी आपको क्या देंगे, ऑक्सीडेशन करके एसिड। तो आप इसका एक सेपरेट वीडियो जो मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन करवाया देख सकते हैं। हाउएवर एक बार क्विकली मैं रिपीट भी कर देती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर देखा है, मैंने यहाँ पे लिया बच्चे अल्कोहल लिया, अगेन मैंने एक अल्कोहल लिया, अल्डिहाइड लिया और कीटोन लिया, और राइट काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये क्या कर जाएंगे, आपको एसिड दे देंगे। आपको पता है लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, कीटोन बीच में से टूटता है, तो आपका जो एसिड का में कार्बन का नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा। बाकी इन सब में जो कि अल्कोहल है या अल्डिहाइड है, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे, सिर्फ कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बदलेगा। लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू द नेम्स ऑफ फ्यू ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। KMnO4 KOH को आप हीट कर सकते हो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज व्हाट यू विल गेट COOK, जिसको आप हाइड्रोलाइज करके COH मिलेगा। देन KMnO4 H2SO4, KMnO4 वाटर एंड CrO3 दैट इज क्रोमिक एसिड और H2SO4 जोन्स रिएजेंट कहता है, ये भी आपको सेम प्रोडक्ट देगा, दैट इज aldehyde, ketone, alcohols to acid. Let us move on to the preparation of aromatic acid from alkyl benzene. Already done a video on this. You can see the link in the I button. Go through that video as well. Acid, however, एक बार आपको फिर से बता दें कि जब भी आप मिथाइल बेंजीन लेंगे और द कार्बन विच इज अटैच टू द बेंजीन रिंग, ये देखिए ये कार्बन जो येलो कलर से है ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। अगर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, जो येलो वाला कार्बन है, अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन है तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। बट आपको पता है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर आपको एसिड नहीं मिल रहा है, राइट। बाय प्रोडक्ट्स आपको कैसे पता चलेंगे, साइड पे जितने भी कार्बन होंगे साइड चेन्स में, उतने कार्बन का आपको एसिड मिल जाएगा। अगर आप देख सकते हैं तो फर्स्ट केस में कोई भी साइड चेन नहीं है, एक ही कार्बन है तो आपको COH मिला। यहां पर आपको दिख रहा है 2 CH3 हैं, तो अलग अलग हैं, तो आपको एक एक कार्बन का एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड मिलेगा, बट फॉर्मिक एसिड डिवाइड करके H2O एंड CO2 दे देता है इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। एंड यहां पर थर्ड में कोई रिएक्शन नहीं हो रही। The oxidizing agent which we used in the previous case, we can use here KMnO4 KOH, KMnO4 conc H2SO4, KMnO4 water. A very good question, why oxidation we prefer neutral or alkaline KMnO4 and not acidic KMnO4? हो सके तो आप कमेंट करके बताइएगा। एक और मेथड है हाइड्रोलिसिस, जो कि सिर्फ अमाइड और नाइट्राइल के लिए, बहुत सिंपल है। नाइट्राइल और अमाइड दोनों के दोनों हाइड्रोलाइज करके एसिड देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। रिएक्शन को आप एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, या मैंने फॉर्मेशन ऑफ अमाइड दिखा है। नाइट्राइल्स पहले अमाइड देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, नाइट्राइल्स ने सबसे पहले अमाइड दिया और अमाइड ने एसिड दिया, और एल्स अगर आप अमाइड से जा रहे हो तो डायरेक्ट एक स्टेप में आपको एसिड मिल जाएगा। सो ये सारे आपके मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I request you to please share, subscribe my channel, and please leave a comment for this video. Thank you. Take care. Bye-bye.